Welcome students. So today we will be learning about root mean square values, or it is also called as effective values. So root mean square value or effective values, we can determine it, or we can learn about it by considering the heating effect of AC as well as DC. हमें किसी फॉर एग्जाम्पल विल टेक अ लैम्प इनटू कंसिडरेशन, या कुछ भी किसी का भी हीटिंग इफेक्ट देखना है कि AC की वजह से कितना आया एंड DC की वजह से कितना आया, एंड देन विल कंपेयर द टू एंड वी कैन गेट द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ दिस RMS. ये RMS वैल्यू होता क्या है? तो if I'll just go through a proper definition, then RMS value or the effective value of an alternating current is given by a DC, which when flowing through a given circuit for a given time produces the same amount of heat as produced by the alternating current. इसका मतलब है कि अगर हम किसी सिस्टम में if you are providing a circuit with a DC as well as a AC, तो हमें चेक करना है कि AC की वजह से कितना हीट प्रोड्यूस हुआ उस सिस्टम में. सिमिलरली वी विल चेक कि DC की वजह से कितना हुआ, एंड देन वी विल सी कि जो कंपैरिजन इन दोनों का हीट प्रोड्यूस, अगर इन दोनों की हीट प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ टाइम में सेम इफेक्ट से उतनी है, देन विल सी कि जो DC वैल्यू आएगा दैट विल गिव अस द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. सो एज पर एज द डेफिनेशन इज कंसर्न, यू कैन जस्ट से कि हमें इनका इफेक्टिव वैल्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द बेसिकली DC वैल्यूज. अब ये DC वैल्यूज कैसे AC क्वांटिटी के साथ हम कंसिडर करेंगे वो मैं आपको बाय एन एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा सकती हूँ. तो सी विल कंसिडर, अब अगर हम इसका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखें फॉर RMS वैल्यू, विल सी दैट वी विल हैव अ लैम्प. दिस इज द लैम्प, ठीक है. सो दिस इज सप्लाइड बाय एन AC सप्लाई, ठीक है. मैंने इसको एक अल्टरनेटिंग सप्लाई दे दी. तो लेट मी connect, since we have to give this lamp both AC as well as a DC supply, so let me have a switch for it. We'll connect a switch which will connect it to both AC as well as DC. So with the help of a rheostat is the variable, it is the variable resistance, the changing resistance. You can adjust the value of the resistance. So this is the rheostat and this is your ammeter, and then finally you are giving it to the DC supply. तो यहाँ पे आपकी DC supply है. See, this is ammeter, this is the DC supply, this is the variable resistance or rheostat. Now you can see, if we have to, first of all हम क्या करेंगे, हम इस लैम्प को कनेक्ट करेंगे to the point number 1. When we'll connect this switch to the point number 1, this lamp will get connected to the AC supply. ठीक है. This switch is also called as the double throw switch. ठीक है. So once it's connected, we get connected to the AC supply, and then what happens? The lamp will get brightened up. So we will measure, we'll observe the brightness of the lamp once to be connected to the AC supply. Then what the second step is that इसका तो मिल गया. Now we have to connect this switch to the switch number 2 and AC supply will get disconnected and the bulb will get connected to the DC supply. अब हम क्या करेंगे, जो ही ये DC सप्लाई के साथ कनेक्ट हो गया तो हमें इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को, इस रिहोस्टैट को इस तरह एडजस्ट करना है, इस तरह वेरी करना है तो हमें जो ब्राइटनेस ऑफ दिस लैम्प बिकॉज ऑफ AC आई थी उतनी ही ब्राइटनेस ऑफ दिस लैम्प आनी चाहिए बिकॉज ऑफ DC. ब्राइटनेस या heat produced because of this AC should be same as the heat produced in this lamp because of the DC. So same heat produced या same brightness, ठीक है. जो ही इनकी सेम ब्राइटनेस, सेम हीट प्रोड्यूस होगी, उस वक्त हमें देखना है कि हमारा जो एमीटर है, एमीटर इज बेसिकली DC एमीटर, ठीक है. तो हमें यहां पे चेक करना है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस एमीटर, ठीक है. द रीडिंग ऑफ दिस एमीटर, इस एमीटर की रीडिंग जो कि हमारे DC साइड, दिस इज DC एमीटर. सो दिस the reading of this ammeter on the DC side will give us the value of the heat
will give us the value of the DC that produces the same amount of heat as produced by the AC supply. That means AC, यहाँ पे जो भी हमारा एमीटर एमीटर क्या देगा, बेसिकली एमीटर विल गिव अस द अमाउंट ऑफ करंट. ठीक है, दैट मीन्स कितना करंट एंड द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें यहां से पता चल जाएगा. तो वी कैन गेट दैट आई स्क्वायर आर, है ना, दैट आई स्क्वायर आर वो हमें बता देगा कि कितनी हीट प्रोड्यूस हुई बिकॉज ऑफ द डीसी सप्लाई, और जिसकी वजह से कुछ ब्राइटनेस आई थी. वही ब्राइटनेस हमने किस पे ली थी, एसी पे भी. हमने पहले एसी ही लगाया, उसकी ब्राइटनेस चेक की, उसका हीट प्रोड्यूस चेक किया, उसी अकॉर्डिंग हमने इस रियोस्टैट की रेजिस्टेंस को वेरी किया ताकि हमें सेम ब्राइटनेस आए दोनों केसेस में. ठीक है, और उसी टाइम जो ही हमारा सेम ब्राइटनेस आया, सेम हीट प्रोड्यूस्ड आया दोनों केसेस में, एसी और डीसी सप्लाई में, उस वक्त हमने चेक किया कि हमारा एमीटर जो हमारा डीसी रीडिंग देगा वो क्या आई, रीडिंग ऑफ आई क्या आई. ठीक है, जो वो डीसी एमीटर हमें रीडिंग देगा ना, वो वही रीडिंग होगी जो बेसिकली आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सप्लाई होगा. दैट मीन्स डीसी रीडिंग जो आएगी एमीटर की फॉर आई, दिस विल बी सेम एज द आरएमएस वैल्यू ऑफ व्हाट, ऑफ एसी साइड. ठीक है, डीसी साइड से जो एमीटर की रीडिंग आएगी वही होगा वैल्यू ऑफ व्हाट, आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी साइड. तो इसी को बोलते हैं, इसीलिए हम इसको इफेक्टिव वैल्यू या डीसी वैल्यूज भी बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू, क्योंकि आरएमएस वैल्यू और आरएमएस वैल्यूज आर फॉर द एसी सप्लाई और फॉर द ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज. ठीक है, एसी को, तो उसको हम विद रेस्पेक्ट टू डीसी क्वांटिटीज कैसे देखेंगे, दैट इज गिवन बाय दिस आरएमएस. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू एनालाइज योर रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज. तो जो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज होते हैं, इनको हम दो मेथड से डिटरमिन कर सकते हैं. वी कैन डिटरमिन दीज रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ टू मेथड्स. तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं, दीज आर ग्राफिकल मेथड्स एंड द सेकेंड वन इज आर एनालिटिकल मेथड. So these two methods can be used to determine RMS values. ठीक है, RMS वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. अब ग्राफिकल मेथड कहाँ पे इस्तेमाल करना है एंड एनालिटिकल मेथड कहाँ पे इस्तेमाल करना है. सो as per as this graphical method is considered, it is used where ACs have we can use for any AC value. अब कौन से AC values के लिए, ऑल्टरनेटिंग, कौन सी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के लिए. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, वी हैव ट्राइंगुलर वेव फॉर्म, वी हैव स्क्वायर वेव फॉर्म्स, है ना. सो वेव फॉर्म कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, साइनोसॉइडल भी हो सकती है, ट्राइंगुलर भी हो सकती है, स्क्वायर वेव फॉर्म. तो वहां पे हमें आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए वी मेक यूज ऑफ द ग्राफिकल मेथड. और एनालिटिकल मेथड्स वहां पे यूज होती है जहां पे हमें प्योरली साइनोसॉइडल AC होता है, वेयर वी हैव प्योरली साइनोसॉइडल AC. तो वहां पे हम क्या करते हैं, वी मेक यूज ऑफ द एनालिटिकल मेथड. लेकिन जहां पे हमारे पास वेरिंग ACs होती हैं, वेरिंग वेव फॉर्म्स होती हैं, जैसे साइनोसॉइडल हो गई, ट्रायंगुलर हो गई, स्क्वायर हो गई, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे वी मेक यूज ऑफ द ग्राफिकल मेथड. ठीक है, तो दैट मीन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म जो होगी उसके लिए हम ग्राफिकल भी यूज कर सकते हैं, एनालिटिकल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर ट्रायंगुलर के लिए हमें वी हैव टू गो फॉर द graphical methods. ठीक है, so let me just tell you how graphical method is shown and how analytical method is done. So let me first of all take up this graphical method. So let me consider varying current, sinusoidally varying current. So this is it. ठीक है, so this is the current which is varying with respect to your time. ठीक है, so if this is t, this is pi, this is 2 pi, this is 0. So this is the time taken from 0 to pi. T is the time. And let us consider that this current is passing through a resistance of R ohms.
So when this current will pass through a resistance of R ohms, so heat will be developed. So we will consider that heat. ठीक है? So let me take I1 is the instantaneous value of the heat at this point. I2 is here. ठीक है? So let me take the time difference between so let me take n number of values. ठीक है? For this positive half of this cycle, I will take n number of values. ठीक है? मैं n तक जाऊंगी. ठीक है? 0 to n. So current will be I1, I2, I3 up to what? IN. ठीक है? So अगर हम टाइम भी इसमें, टाइम इंटरवल भी हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इट विल बी लाइक, इफ इट इज टी, तो टोटल एक अगर पूरे इंटरवल का टी है तो एक इंटरवल का कितना होगा? फॉर एन नंबर ऑफ इंटरवल इट विल बी टी बाई एन. ठीक है? तो फ्रॉम अगर मैं इसका नाम रखूं 1 to 2, फ्रॉम 1 to 2 पॉइंट, इसका टाइम इंटरवल, इसमें इंटरवल कितना है? टाइम इंटरवल इट इज टी बाई एन. This is, let me explain it again. See, for one half of cycle, we are taking the time period to be t. ठीक है? We are considering n number of currents. So the time interval for between one interval to second interval, between two, see, I1 to I2, the time interval will be total time divided by number of intervals. So it will be t by n. ठीक है? So if for general consideration, heat produced is equal to I square RT. तो जनरली हम I square RT लेते हैं हीट प्रोड्यूस्ड. ठीक है? तो अब हमें क्या करना है ना, हम फर्स्ट इंटरवल के ले लेंगे, सेकेंड इंटरवल के ले लेंगे, nth इंटरवल के ले लेंगे. विल कंसिडर वन इंटरवल एट अ टाइम एंड विल सी कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, एंड देन उसका हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेंगे. ठीक है? तो लेट मी राइट इट डाउन हेयर. हीट प्रोड्यूस्ड इन first interval, it will be, see, I am taking I1, so since it's I square RT, so I'll take I1 square R, and for time period, for one interval, it is T by N. ठीक है? Now similarly, heat produced in second interval, it will be what? It will be now at point number 2, it is I2 का square, R is the resistance, and T by N is the time period for that interval. Similarly, if I'll go for heat produced for nth interval, so that will be what? That will be IN square R T by N joules. So this is the heat produced. So I have to consider the total heat produced. Now total heat produced will be how much? Let me write it down here. I'll just erase this thing. And so total heat produced in t seconds. The total interval, the first half, will be equal to how much? It will be, see, R and T will be common. R multiplied by T multiplied by, we have to add all these. So it will be I1 square plus I2 square plus dash dash up to what? IN square, and divided by the total number of intervals, that is N. So this is the total heat produced in the first half cycle. ठीक है? So since heat produced in both positive and negative half will be same, heat produced in positive half cycle will be same as the heat produced in negative half cycle. So I am just considering the one half of the cycle. ठीक है? तो when I added up all these heat produced in t seconds for the one interval, I got this value, R into T, and the average of the all intervals. Now since this is due to AC, this is the heat produced due to AC. Now I'll consider the heat produced due to DC, क्योंकि I have to compare ना, मैं RMS वैल्यू क्या मान के चल रही हूँ कि वो DC वैल्यू होता है, लेकिन किसका DC वैल्यू? वो होता है बेसिकली AC वैल्यू का
डीसी वैल्यू। तो वही देखना है मुझे ये कैसे निकलता है। अब इसका मैंने निकाल दिया, आई गॉट द हीट प्रोड्यूस्ड इन टी सेकेंड्स फॉर एन एसी वैल्यू। अब मैं इसी का डीसी कंसिडर करूंगी, ठीक है। तो लेट मी जस्ट इरेज इट। नाउ heat produced by DC passing through same resistance। अब क्या करना है मुझे, अब इसी को मैंने पास कराना है, जो मैंने उसमें कंसिडर रेजिस्टेंस आर की, इसमें भी मैंने आर कंसिडर कर, आई एम कंसिडरिंग डायरेक्ट करंट ऑफ आई एम्पियर्स, ठीक है। आई एम्पियर करंट पास करा रही हूं मैं थ्रू सेम रेजिस्टेंस आर फॉर सेम टाइम, और मैंने टाइम उसमें टी लिया था, तो मैं इसमें भी टी टाइम के लिए चेक करूंगी फॉर टी सेकेंड्स। तो वो कितना होगा, दैट विल बी आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। सो दिस विल बी माई डीसी वैल्यू, ठीक है। सो अगर मैं मान के चल रही हूं ये वैल्यू और जो मैंने एसी का वैल्यू लिया वो सेम हीट प्रोड्यूस करेगा, तो दैट मीन्स आई कैन इक्वेट दीज टू। तो जो ये मेरा आई स्क्वायर आर टी बिकॉज ऑफ डीसी, अगर मैं सेम लेके चलूं बिकॉज ऑफ एसी, वो क्या था, आर मल्टीप्लाइड बाई टी, और सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का मीन निकाला था मैंने क्या किया था, आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर प्लस अप टू व्हाट, आई एन स्क्वायर, यही किया था, डिवाइडेड बाय एन। आई एडेड अप ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज इन द एसी, ठीक है। तो ये दोनों मेरे को बराबर आ गए, ठीक है। इफ आई कंपेयर दीज टू देन आर आर गोज, टी टी गोज, सो दिस आई स्क्वायर ऑफ डीसी इज इक्वल टू आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर प्लस डैश डैश अप टू आई एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। इफ आई शिफ्ट दिस स्क्वायर टू द रूट, इट विल बी, इधर से हटा के इट विल बी बेसिकली दिस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज आई आर एम एस, इट इज द आर एम एस। अब क्या बन गया, इट इज द रूट मीन एंड स्क्वायर, ठीक है। आई एम टेकिंग मीन आई वन आई टू, आई एम टेकिंग द मीन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आई एम स्क्वायरिंग देम एंड देन आई एम प्रोवाइडिंग इट विद अ रूट। तो रूट मीन स्क्वायर value of an DC of an AC is equal to the DC value, ठीक है। तो ये हम निकालते हैं, इस तरह हम we get the RMS values, ठीक है। इसको virtual values भी we sometime call it as a virtual value of an AC, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमने IRMS निकाला, इसी तरह हम VRMS भी निकाल सकते हैं। इफ यू हैव सिमिलरली, अगर हमें यहाँ पे वोल्टेज का RMS भी लेना हो तो we can directly write down the equation, we need not to solve it again. So VRMS, it will be how much, VRMS will be root of instantaneous value पहला उसका स्क्वायर प्लस इंस्टेंटेनियस सेकेंड उसका स्क्वायर प्लस डैश डैश अप टू जितना भी आपको लेना है, VN फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N। मीन निकालो, स्क्वायर करो एंड देन रूट करो, दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू which is basically the effective value, which is basically a DC value for the same। हमें considerations AC और DC के लिए सेम लेनी। considerations क्या, जैसे हमने यहाँ पे resistance का वैल्यू सेम लिया, टाइम सेम लिया, हीट सेम ली, हीट प्रोड्यूस सेम ली, तो उस पर जब हमारा DC वैल्यू जो आएगा वही हमारा बेसिकली RMS वैल्यू ऑफ AC होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू गो फॉर द ग्राफिकल मैथ।